Friends, I am Neha Miglani. Today I am going to cover the topic of demand forecasting part 5. I have already given the videos of demand forecasting part 1, part 2, part 3 and part 4. In this I have discussed the various methods of the demand forecasting. In my first two videos, that is the demand forecasting part 1 and part 2, I have given the detailed view about the qualitative methods of the demand forecasting. And in my part 3 and part 4 video, I have given the detailed view about the trend methods of the uh, demand forecasting, in which I have covered the two methods of the trend methods of demand, statistical methods of the demand forecasting. So in my next video I am just going to cover the topic of time series method and moving average method of the statistical trend method. So let's start our video. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Vagar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Vagar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. For discussing the methods of the trend projection method, I will give the view about the methods of demand forecasting. As we have already discussed that there are two types of the methods of the demand forecasting, that are opinion polling method and statistical methods. In opinion polling method, there are three types of method: consumer survey method, sales force opinion method, and expert opinion method. And in statistical method, there are four types of method. First one is trend projection method, which we are going to cover, which we are covering in our part 3 and part 4 video. And next is barometric method, and next is regression method, and next is simultaneous equation method. In the trend projection method, I have covered the method of fitting trend line by observation in my part 3 video, and least square linear regression method in our part 4 video. So please go through my these videos. Now in my this video I am going to cover complete the time series analysis method, and maybe probably I will complete the next method, moving average and annual difference method. First and the third method of the trend projection method is the time series method. The time series data, as per the name suggests, time means the period. The time period has been taken, and the data of that time period has been collected and being analyzed. So the data collected over a period of time, recording historically, जो भी डाटा हमारा पीरियड और पीरियडिकली हम जो कलेक्ट करते हैं उसको हम हिस्टोरिकली जो है वो मतलब कलेक्ट करते हैं, और चेंज इन द प्राइस, और जो भी हम इसमें प्राइसेस में चेंज आ रहा है या हमारे इनकम लेवल में चेंज आ रहा है या फिर अदर रेलिवेंट वेरिएबल्स, जो भी अदर वेरिएबल्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उन सभी के चेंजेस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं और उस डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम जो कहते हैं टाइम सीरीज डाटा मेथड. सो इन ए टाइम सीरीज एनालिसिस रिलेट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज इन ए वेरिएबल इन रिलेशन टू द टाइम. सो टाइम सीरीज मेथड क्या होता है कि ये रिलेट करता है कि चेंज इन द वेरिएबल्स, कि ये जो अदर वेरिएबल्स है, लाइक आपकी डिमांड, आपकी इनकम, प्राइस लेवल जो भी है, इन सभी में चेंज आता है इन रिलेशन टू द टाइम के चेंज आने के से इनमें कितना चेंज आता है उसको हम टाइम सीरीज डाटा कहते हैं. तो इसको हम और भी थ्रूली एक्सप्लेन करेंगे.
मैनर से हम डिस्कस करने के लिए हम एक अलग प्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ टाइम सीरीज मॉडल? टाइम सीरीज मीन्स हम इसको वन बाय वन और विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग डेफिनेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ टाइम सीरीज मॉडल? बिफोर डिस्कसिंग द टाइम सीरीज मॉडल वी आर गोइंग टू फोकस द व्हाट इज़ फॉरकास्ट. फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, कि हमारा फ्यूचर किस तरीके से चलेगा, उस हिसाब से हम जो है प्लानिंग से हम अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू करते हैं. सो टाइम सीरीज इज़ द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिमांड. टाइम सीरीज क्या होता है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन की जाती है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है इन देयर ऑर्डर और अक्रेंस, कि ऑर्डर ऑफ अक्रेंस के हिसाब से कैसे कैसे चेंज आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइम डे ले लिया हमने 2 मंथ का, तो जनवरी फरवरी में कितनी डिमांड में चेंज आया है, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में कितना डिमांड में चेंज आया है, अप्रैल के बाद मई जून में कितना चेंज आया है, मई जून के बाद जुलाई अगस्त में कितना चेंज आया है, अगर जुलाई अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में कितना चेंज आया है. मतलब क्या है कि पीरियोडिकली जो है, मतलब बेसिकली हम पीरियोडिकली टाइम को कंसीडर करते हैं और इस हिसाब से हम अपने डिमांड को देखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से. ठीक है. सो कंपोनेंट फॉर टाइम सीरीज के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ए टाइम सीरीज कैन कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स. इसके जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट होता है हॉरिजेंटल और स्टेशनरी कंपोनेंट. हॉरिजेंटल और स्टेशनरी कंपोनेंट. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड विच इज़ डिनोटेड एज टी. देन साइक्लिकल अफेक्ट which is denoted as C, and then seasonal effect which is denoted as S, and then last is the random variation which is denoted as R. ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो ये कंपोनेंट्स किस हिसाब से होते हैं, कैसे इनकी वेरिएशंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो जैसे मैंने ये देखा है, अब हम इसको देखेंगे कि किस हिसाब से ये हुआ है. देखो, ए ट्रेंड क्या होता है? ए ट्रेंड इज ए लॉन्ग टर्म रिलेटिवली स्मूथ पैटर्न डायरेक्शन दैट परसिस्ट यूजुअली फॉर मोर देन 1 ईयर. एक ट्रेंड क्या होता है? जब हम जो है एक लॉन्ग टर्म जो है परसिस्ट होता है, कि भी जो हमने पढ़ा है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में, ग्राफिकल मेथड में, कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उन लाइंस के थ्रू ये जो हमारी ट्रेंड हम लाइन फॉर्म्ड करते हैं, कि ये चीज़ दिखाता है कि 1 ईयर में कितना चेंज आया है. जैसे ये सारे हमारे क्या हैं? ट्रेंड्स, जो हमने ग्राफिकल मेथड्स में भी डिस्कस किए हैं. तो इसको मैंने दोबारा से रिपीट करवाया है क्योंकि इसी के थ्रू ही हम आगे वर्क करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अवर व्हाट इज साइकिल. साइकिल क्या होता है? ट्रेंड हमने डिस्कस कर लिया. अब साइकिल क्या होता है? साइकिल इज ए वेव लाइक पैटर्न. साइकिल क्या होता है? एक वेव लाइक पैटर्न होता है. ठीक है. डिस्क्राइबिंग ए लॉन्ग टर्म बिहेवियर फॉर मोर देन 1 ईयर. जब एक ट्रेंड क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जब हमारा डाटा 1 ईयर का हो. और साइकिल क्या होता है? साइकिल इज दैट ट्रेंड होता है या वेव लाइन होती है जो मोर देन 1 ईयर की हो. जैसे इसमें मैंने डाटा आपका लिया हुआ है 6. ठीक है. 6 मंथ कौन सा होता है हमारा? जून. ठीक है. जून 90 का डाटा लिया, फिर जून 93 का डाटा लिया, 1993 का, फिर जून 1996 का, देन जून 1999 का, देन जून 202 का 2002 का. जो हम 1 ईयर से ज़्यादा का जब डाटा लेके चलते हैं, जो हमारी वेव लाइन जो है फॉर्म्ड होगी और उसके थ्रू जब हम ट्रेंड क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? साइकिल. ठीक है. तो साइकिल आर सेंडम रेगुलर एंड ऑफन अपीयर इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंपोनेंट्स. साइकिल क्या होता है? एक सेल्डम रेगुलर वेव होती है. इसमें ये नहीं होता है कि इसको यहाँ बनाया फिर यहाँ बना दिया फिर वहाँ बना दिया. नो, इट्स इज ए साइकिल जो होती है एक सेल्डम रेगुलर वेव होती है, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो कॉम्बिनेशन के साथ बनती है. अब हम डिस्कस करेंगे जो सीजनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सीजनल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? द सीजनल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज एग्जिबिट ए शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर कैलेंडर रेपिटेटिव बिहेवियर. जब सीजनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो एक 1 ईयर लेस देन 1 ईयर का डाटा ही होगा उसमें. बट हम क्या करते हैं उसमें जो है हमारी जो वेव्स होती हैं वो रिपीट कर रही होती है. जैसे यहाँ पे हमारी वेव आई, फिर ये रिपीट करके फिर चलेगी, फिर नीचे को उतरी, फिर रिपीट करके ऊपर को चलेगी. ऐसा नहीं है कि जहाँ पे शॉर्टफॉल आया फिर ऊपर को चलेगी, ऐसे आया ऐसे. साइकिल में क्या होता है? आपका जो वेरिएशन इस तरीके से जा सकता है. बट आपकी जो दूसरा
क्या नाम है, आपकी जो सीजनल कंपोनेंट्स में क्या होता है, ये एकदम से आपस में रिपीट करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, सीजनल हमारे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अवर व्हाट इज रैंडम वेरिएशंस। अब हम रैंडम वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। रैंडम वेरिएशन कंप्राइज द इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन द टाइम सीरीज। जब हमारा हमारा रैंडम वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस मतलब चेंजेस, वो चेंजेस होते हैं जो कि इरेगुलर हो, जिसकी ना ही कोई प्रेडिक्शन की गई हो, ना ही उनका कोई पता हो, अनप्रिडिक्टेबल जो चेंजेस आ जाए, लाइक जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चली हुई है। नाउ इट्स ए इन हिंदू रिलीजन देयर आर सीजन ऑफ द मैरिजेस, ठीक है, बट ड्यू टू द कोविड की सिचुएशन की वजह से हम उतने लैविश वे से मैरिजेस कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए। उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है, मार्केट जो है, वो अफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो क्या आया, अनप्रिडिक्टेबल चेंज आया ड्यू टू द पेंडेमिक की वजह से, उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएशंस। ठीक है, ये एकदम से आ जाता है और इसका पता नहीं होता है। सो रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस जो है क्लासिफाइड इनटू, जो रैंडम और इरेगुलर जो वेरिएशंस है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एपिसोडिक, ठीक है, एक होंगे आपके एपिसोडिक, एक होंगे रेजिडुअल। एपिसोडिक क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल बट आइडेंटिफाइएबल। एपिसोडिक वो चेंजेस होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं बट उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं कि उनको हम मैनेज कर सकते हैं। रेजिडुअल चेंजेस क्या होते हैं, रैंडम वेरिएशंस क्या होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड चेंज फ्लक्चुएशन अनआइडेंटिफाइएबल। जो ऐसे चेंजेस होते हैं जो बिल्कुल ही फ्लक्चुएट होते हैं और इनको हम इनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि भाई क्या हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो कोविड की वजह से सिचुएशंस अराइजेस हुई थी, वो हमारे जो थी वो रेजिडुअल चेंजेस थे, रेजिडुअल रैंडम वेरिएशंस आते थे। बट इस ईयर में हमें पहले से ही थोड़ी सी प्रेडिक्शन थी कि अभी तक वो कोविड नहीं गया हुआ है, जिस वजह से हमारा जो मार्केट है वो अफेक्ट कर सकती है, तो वो एपिसोडिक जो है वो आपके चेंजेस कंसीडर होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे जो आते हैं, जैसे ये हमने ड्रॉ किया है, ये हमारे एपिसोडिक और रेजिडुअल चेंजेस हमने बताए हैं। ठीक है, अब जो है हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे कि हमारे ये जो चेंजेस है वो क्या चेंजेस है। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो कौन सा मेथड डिस्कस किया है, टाइम सीरीज मेथड को डिस्कस किया है इन ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में। टाइम सीरीज मेथड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है। टाइम सीरीज मेथड जो है वो ये चीज़ बताता है कि आपकी जो है टाइम सीरीज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को हम चेक करते हैं कि कितनी उनकी डिमांड जो है वो आ रही है। ठीक है, रिपीटेड मतलब कॉन्टिन्यू फॉर्म में आपका डाटा जो कंसीडर किया जाएगा, इस चीज़ में आपने देखना है। आपके टाइम सीरीज डाटा में आपका जो डाटा लिया जाएगा वो आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। सो इसके जो है 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल या स्टेशनरी, ठीक है, और होता है एक लॉन्ग टर्म, एक होता है साइक्लिकल, एक होता है सीजनल, एक होता है रैंडम वेरिएशन, जो अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल स्टेशनरी कंपोनेंट्स क्या होता है, फ्लक्चुएशन अराउंड ए कांस्टेंट मीन। हॉरिजेंटल स्टेशनरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब आपके जो आप ट्रेंड लेते हो, जब आप टाइम सीरीज का डाटा लेते हो, ठीक है, वो आप जो है आपका वो कांस्टेंट मीन में होता है। कांस्टेंट मीन में मतलब क्या है, आपका जो डाटा आपने 1992 का लिया, उसमें आपकी जो डिमांड है वो 2000 की आई है। ठीक है, आपने 1993 का डाटा लिया, उसमें भी आपका डिमांड उसी हिसाब से एक रेट हुई है, 2005 आ गई या 2010 या 15 के अराउंड आ गई। देन 1994 में भी सेम, 1995 में भी सेम, 1996 में भी। मतलब क्या है, आपकी जो डिमांड का जो कांस्टेंट मीन है वो आपका बराबर रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है, जैसे ये मैंने चीज़ आपको ट्रेंड डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है, एक जो होती है, जब हम मोर देन 1 ईयर का डाटा जो है लेके चलते हैं और एक स्मूथ पैटर्न से वो डाटा फॉर्म्ड होता रहता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेव्स फॉर्म्ड नहीं होती हैं। जैसे वो एक्स्ट्रा वेव्स नहीं आएंगी, आपका जो डाटा है वो फ्लो में चलता है और मोर देन 1 ईयर का होता है। उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया है
वो हमने डिस्कस किया है। हमारा डाटा जो है वो है साइक्लिकल। साइक्लिकल में क्या है, जब मोर देन 1 ईयर का डाटा ही लिया जाता है, बट आपकी जो वेव्स होती है वो अनपीरियोडिकल बिहेव करती है। और सीजनल कंपोनेंट्स में क्या है, हम सीजन के हिसाब से डाटा लेके चलते हैं, वो लेस देन 1 ईयर का होता है। बट आपकी जो वेव्स फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, आपकी जो ग्राफ में जो आपकी वेव्स फॉर्म्ड होंगी वो एकदम से डाउन और अप और डाउन और अप और डाउन और अप की सिचुएशन में वेव्स आपकी फॉर्म्ड होती है। देन आपकी आ जाती है रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस। रैंडम वेरिएशंस क्या होती हैं, जब आपका जो डाटा है अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जब आपके आते हैं, तब वो हमारा कौन सा डाटा होता है, रैंडम वेरिएशन। सो इनमें हमने दो चीज़ें कंसीडर की है, एक एपिसोडिक, एक होती है रेजिडुअल चेंजेस। एपिसोडिक में जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं बट आइडेंटिफाइबल, जब जैसे मैंने आपकी कोविड की एग्जाम्पल ली है, ठीक है। रेजिडुअल चेंजेस जो होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और जो अनआइडेंटिफाइबल और अनफ्लक्चुएशन उनमें बहुत ज़्यादा होती है और जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वो हमारे चेंजेस वो होंगे, ठीक है। So in my today video, I have discussed the time series model of the trend projection method. This is our third method of the trend projection method. So it's all about our today topic. In our next video, part 6 video of the demand forecasting, we are going to discuss the moving average method. This is also a very important method for the examination purpose. Please go through my previous video and please also go through my next video also for the demand forecasting. I will give my best to complete your topic and also to describe your topic. Okay, so thank you so much.